हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो हम 12th के लिए लेकर आए हैं, इन विच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर 3 LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. In my previous video related to this topic, I have introduced you why in India LPG was introduced, what were the reason behind the introduction of new strategy based on economic reform, in which we have introduced what is the meaning of liberalization, privatization and globalization. So here we start with topic liberalization. As I told you already, the meaning related to liberalization, that is making liberal policies for the development of overall economy and to make liberal strategies through which we can invite other world to enter into the nation. So here we'll begin with the today topic. What were the reform process introduced in the category of liberalization? When we introduce liberalization, so what were the area on which government has focused to reform with making few things, few strategies liberal in these areas. So here we'll start, and before we start, those who are new on my channel, I do like to share, subscribe and also like my channel. So here we'll begin. In liberalization LPG policy, the first reform was introduced in the sector which is called industrial sector. Like we all know, before 1991, Indian economy was based on industrial and agriculture sector, right? So in industrial sector, when we discussed about IPR policy, there was 3 schedules among which the public sector role was dominating, because of which there was a system of licensing also in category C type of schedule, where government was controlling private industries by maintaining with license policy, and this license policy make lots of hurdle in the process of growth of industrial sector. For this reason, government first focus during reform period was abolition of industrial licensing. यानी गवर्नमेंट का सबसे पहला फोकस यही रहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से लाइसेंस पॉलिसी को थोड़ा सा लिबरल करें. जहां पहले हर एक इंडस्ट्री को आने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, वहीं गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंतर्गत मींस लिबरलाइजेशन के अंडर उन्होंने इस पॉलिसी को लिबरल किया और सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज को बाउंड किया कि उन्हें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी. बाकी सारी इंडस्ट्री फ्रीडम दे दी गई, वो कभी भी मार्केट में आए, अपना काम करें और जैसे भी चाहें. पर कुछ 18 इंडस्ट्रीज को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया विथ लाइसेंस, और उनमें थे केमिकल हैजर्ड इंडस्ट्रीज and industrial explosive industries, many industries which are actually not good for environment as well as for society while producing their commodity. तो इन चीजों पे रोक लगाई गवर्नमेंट ने और उनको लाइसेंस के साथ कंटिन्यू किया. बाकी रिमेन सारी इंडस्ट्रीज लाइसेंस फ्री कर दी. सो दिस इज हाउ द लाइसेंस पॉलिसी वाज अबॉलिश्ड ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड. नेक्स्ट वाज डिक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, that we have already discussed. During this 7-5-year plan, economic planning system till 1990, public sector role was dominating. Why it was dominating? Because private sector were not having enough fund to introduce new industries. Even their working process was not cooperative. So government ko as a motive of welfare, they were forced to introduce this policy. So with this policy, government has actually targeted reducing their role from various industries and providing the role of private industries also. तो उन्होंने क्या किया, जो 17 इंडस्ट्रीज सबसे पहले हमने जब डिस्कस की थी, विच इज टोटली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, कौन सी थी? शेड्यूल ए की इंडस्ट्रीज. आईपीआर पॉलिसी में जो शेड्यूल ए था, जिसमें पूरी इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ गवर्नमेंट की ओनरशिप में थी, वो कितनी थी? 17. तो उन 17 इंडस्ट्रीज पे से गवर्नमेंट ने अपना रोल कम किया, श्रिंक किया, एंड इन 1991 इट वाज रीचेस टू 8 इंडस्ट्री. तो इंडिया में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई और गवर्नमेंट 8 इंडस्ट्री पे आ गई 1991 में. एंड फॉर 2010 से सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज ही हैं जो गवर्नमेंट के रिजर्व में रह गई, दैट इज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे. और अगर अब हमें पता हो, 2020 में गवर्नमेंट ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर रेलवे में भी एंट्री करने वाली है. So in this way we can see how government role has been decreased over the year with the introduction of LPG policy.
So this was the reason behind the introduction of LPG, the liberalization policy, through which the private sector now playing a significant role in our country as well, and also providing overall growth in terms of GDP. Though in this pandemic period we all experienced that GDP growth has been declined. In the recent news you all know about that GDP rate of the country is in negative, that is 23.9. Compared to other developed country, we are at a very top level in reduction of GDP. So this is a matter of really a serious issue to our country, where we need to develop more strategies. We need to innovate the new era through which we can cope up with this and we can go back to our GDP ratio. So this is how the public sector role we have discussed under industrial reform period. Next is de-reservation of production by small scale industry. Before 1991, there was 836 production was limited, confined to only small scale industries. Means government ने, हमने पढ़ा था during economic planning period कि government ने small scale industries के लिए कुछ product reserve कर दिए थे. Means उन एरिया में जहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही हैं, वहां किसी भी तरह की लार्ज इंडस्ट्री एंटर नहीं करेगी, उन प्रोडक्शन को नहीं कैरी ऑन करेगी, राइट. बट जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ, there was a need to interfere in the production capacity of small scale industry. For this, government ने private industries को फिर से मौका दिया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट रिजर्व थे उनको डी रिजर्व करके अब उनके पास सिर्फ 114 यानी 114 प्रोडक्ट ही लिमिटेड रह गए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है. सो इन दिस वे government has improved over the year and make the reform in the field of de-reservation of small scale industrial production. Along with that, in 2005 में, here I am writing, in 2005 government has introduced MSME, that is मार्जिनल स्मॉल स्केल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस. ये कंसेप्ट लॉन्च किया जिसमें सिर्फ स्मॉल स्केल नहीं, अब इसमें और भी तरह की इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो गई, लाइक माइक्रो, स्मॉल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री. माइक्रो, एम, स्मॉल, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, दे ऑल इवॉल्व इन 2005 to 6 और इन सब ने मिलकर एक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया फ्रॉम द ग्रासरूट टू द टॉप लेवल. तो गवर्नमेंट ने इसमें बड़ा चेंज किया कि 836 इंडस्ट्रीज को 836 प्रोडक्ट जो रिजर्व थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ 1989 तक उनको डी रिजर्व करके कितना छोड़ दिया, 114. बट विद द न्यू एरा ऑफ 2005 विद MSME, न्यू इवोल्यूशन हैज स्टार्टेड इन द फील्ड ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सो दिस इज द नेक्स्ट रिफॉर्म इन दिस एरिया. नाउ वी आर गोइंग फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मार्केट फोर्सेस. Earlier, before 1991, price was determined by the industries. So before we go with this paragraph, I need to add some few things here also. In 2017, the industries were limited to production were limited to 114 product in under category of small scale industry. But now, from 2015, all goods are de-reserved. यानी कि 2015 से गवर्नमेंट ने, जब मोदी गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने सारी गुड्स को डी रिजर्व कर दिया. यानी अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हर तरह का प्रोडक्शन कर सकती हैं. अब कोई भी तरह की गुड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व नहीं है. सो दिस इज हाउ इट हैज बीन चेंज ओवर द ईयर. नाउ गोइंग फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन. पहले ये प्राइस कौन डिसाइड करता था, इंडस्ट्रीज डिसाइड करती थी गुड्स की. बट अब प्राइस जो डिसाइड होती है वो मार्केट फोर्सेस से होती है. एंड वी नो that in market forces we are talking about demand and supply. तो मार्केट फोर्सेस में जब हम आते हैं तो हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं. यानी मार्केट में कैसी डिमांड है, कैसी सप्लाई है, उस पर डिपेंड करता है प्राइस का रेशियो. नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. लाइक पहले प्रायर टू 1991 we were not importing lots of capital goods. We were depending on foreign product, that too in terms of food product. तो जब हम टेक्निकली एफिशिएंट होने लगे, हम इम्प्रोवाइज करने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो हमें जरूरत पड़ी कैपिटल की, यानी कि टेक्निक्स की, टूल्स की, इक्विपमेंट्स की. तो इस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए हमने इंपोर्ट करना शुरू किया. किसका? कैपिटल गुड्स का. जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन फास्टर ग्रोथ पर हो गया, फास्टर रेट पर हो गया.
So this is all about industrial sector reform during liberalization period. Now we are moving to टैक्स रिफॉर्म. फाइनेंशियल सेक्टर है बट इतना भर गया है इसलिए हम पहले टैक्स रिफॉर्म पढ़ेंगे, देन विल स्टडी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म. सो यू जस्ट राइट डाउन दीज की पॉइंट, देन विल स्टार्ट विद टैक्स रिफॉर्म. सो नाउ वी आर गोइंग विद टैक्स रिफॉर्म, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म. टैक्स एक्चुअली अंडर कैटेगरी ऑफ फिस्कल रिफॉर्म होते हैं. फिस्कल रिफॉर्म होते क्या है? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी. Fiscal policy is the record or the statement of the government in which government is maintaining its expenditure as well as the revenue. तो fiscal policy is actually a government expenditure and government revenue statement and the record, जिसके थ्रू गवर्नमेंट पता करती है कि ओवरऑल इन फिस्कल ईयर मींस अकाउंटिंग ईयर में कितना खर्चा हुआ है और कितनी इनकम आई है. ऑन दी बेसिस ऑफ विच इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है हमारी कंट्री में, ये हम सबको ही पता है, टैक्सेस, राइट. तो रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी गवर्नमेंट को, इसलिए फिस्कल डेफिशिएट हमें फेस करना पड़ा. हमारे खर्चे ज्यादा हो गए, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए लोगों के वेलफेयर के लिए, और इनकम का कलेक्शन कम हो गया, यानी टैक्स से कलेक्शन कम हो गया. वो उसका कारण क्या था? जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उस पे बहुत ज्यादा हाई रेट थी, यानी इनकम टैक्स जो एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा सोर्स है वो बहुत हाई होने की वजह से टैक्स इवेजन शुरू हो गए, टैक्स की चोरियां शुरू हो गई. लोग टैक्स टाइम पे नहीं भरते थे और पूरा भी नहीं भरते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस बियर करना पड़ता था. इनकम कम होती चली गई, श्रिंक होती चली गई, खर्चे बढ़ते चले गए. सेम विथ इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स का प्रोसेस बहुत लंबा होता था और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी उन पे सेल्स टैक्स और ये सब लगते थे, तो वो इनको हाइड करने की कोशिश करते थे, छुपाते थे. टैक्स इवेजन तब भी होता था. तो इस कारण से ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट को लिबरल करनी पड़ी, सो दैट पीपल स्टार्ट पेइंग देयर टैक्सेस ऑन टाइम विद फुल अमाउंट अकॉर्डिंग टू टैक्स पॉलिसी. फॉर दिस रीजन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी. यानी पहले जो सिस्टम था वो सबके लिए सेम था, लेकिन गवर्नमेंट ने 1991 के बाद ड्यू टू लिबरलाइजेशन प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, यानी सबसे पहला हुआ डायरेक्ट टैक्सेस में रिडक्शन. जो हाई टैक्सेस इम्पोज होते थे इनकम टैक्स पे, हमें पता है डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा सोर्स इनकम टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है. तो जो हाई होते थे गवर्नमेंट ने उसको प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में बदल दिया, जिसकी वजह से इनकम का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टैक्स की रेट भी बढ़ती जाएगी. अब हमारी कंट्री में क्या रेट चलती है? 5%, 20% एंड 30%. दिस इज द करंट टैक्स रेट. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ती जाएगी, राइट. फिर सेकंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ने, इसके साथ कॉर्पोरेट टैक्स में भी ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है. वी कैन सी ओवर द ईयर कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो बहुत कम हो गया है, और रिसेंटली तो और भी 16 या 17 गवर्नमेंट ने कर दिया है. नेक्स्ट इज रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. Indirect taxes means we are talking about which are actually paid by ultimate consumer but it is charged on the producer. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पहले हमें डिफरेंस समझना है. डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस whose burden cannot be shifted to other person, means impact or incident of the taxes laid on same person. इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जिस पे लगता है उसी को पे करना है, राइट. और इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसे टैक्स सिस्टम है जो जिस पे लगते हैं वो अपना बर्डन दूसरे पे शिफ्ट कर देता है. कैसे? सेल्स टैक्स लगा, प्रोडक्शन यूनिट पे लगा, उसने इसको प्रोडक्ट में इंक्लूड करके आपके ऊपर डाल दिया. तो कंज्यूमर जब खरीदेगा तो उसने देखा होगा नीचे हमेशा लिखा रहता है एमआरपी के नीचे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी टैक्स लगा किसी और पे बट उसका अल्टीमेट बर्डन किसी और पे आया. सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम. तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी लिबरलिटी आई, उसको भी चेंज किया गया, प्रोसीजर स्लो किए गए और बहुत तरीके से गवर्नमेंट ने इनकी रेट्स भी ग्रेजुअली डिक्लाइन करी. एंड नाउ यू ऑल नो फ्रॉम 2017 1st July we are following the new system of indirect tax, that is GST, Goods and Services Tax. ये आपके में एड ऑन हुआ है, ये पढ़ना जरूरी है इंडियन इकोनॉमी के 3rd चैप्टर में. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच हैव इंट्रोड्यूस्ड 1st July 2017, passed under the Act of 2016. GST Act 2016 में पास हुआ था और 2017 में इम्प्लीमेंट हो गया. इसमें 3 सिस्टम होते हैं, CGST, IGST एंड
CGST, IGST एंड SGST, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जब स्टेट टू स्टेट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस तरह से 3 पॉलिसीज में आई, इसके बारे में डिटेल में हम और पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे कवर अप होता है वो कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स पेइंग प्रोसेस। जो टैक्स पेइंग प्रोसेस था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, पेपर वर्क बहुत हुआ करते थे, तो लोग इस फैटिक से भी, इस उलझन से भी बचने के लिए टैक्स पे नहीं करते थे, इसलिए टैक्स की चोरियां बहुत होती थी। तो गवर्नमेंट ने नाउअडेज यू ऑल कैन सी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है टैक्स पेमेंट करना। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सारी चीजें आपके लिए डिजिटल करती जा रही है गवर्नमेंट। क्यों? जिससे कि आप सिंपली घर बैठ के अपना पेमेंट आराम से करें, लेकिन टैक्स की चोरी ना करें, क्योंकि टैक्स चोरी होने से सबसे बड़ा भार किस पे पड़ता है? हम ही पर। क्योंकि अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे टाइम पर तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते हैं, इनकम सोर्स कम हो जाती है, और इस कारण से फिर प्राइसेस हाई होती हैं और फिर से टैक्स इम्पोजिशन बढ़ता है। तो अगर हमें सच में ही अपने आप को बचाना है इकोनॉमिक रिसेशन से, तो हमें भी गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स पे करना चाहिए। सो इन दिस वे द टैक्स रिफॉर्म सिस्टम यानी फिस्कल रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस। टैक्स रिफॉर्म को हम बोलते हैं फिस्कल रिफॉर्म। क्यों? क्योंकि टैक्स जो है किसका पार्ट है? फिस्कल पॉलिसी का, एंड फिस्कल पॉलिसी सेज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू सोर्सेज, जिसमें टैक्स सबसे बड़ा रिफॉर्म है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इस एरिया में रिफॉर्म क्रिएट करे। जल्दी से इसको लिख लीजिए। देन वी आर मूविंग टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। सो नाउ विल स्टार्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। बिफोर 1991 हम सबको पता है कि हमारी कंट्री में एक बड़ा सिस्टम ऑफ बैंकिंग स्टार्ट हुआ था इन 1969। देयर वाज अ चेन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, यानी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया था फाइनेंशियल सेक्टर में। 14 ऐसी पब्लिक बैंक लॉन्च करी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करने लगी थी जुलाई 1969 में। उसके बाद उसी के 2 साल बाद गवर्नमेंट ने 1980 में वापस गवर्नमेंट ने 20 और नई इंडस्ट्रीज लॉन्च कर बैंकिंग स्टार्ट करी। सो ऑल टुगेदर कंट्री में बैंकिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। लेकिन जितने भी कमर्शियल बैंक लॉन्च हुए उन सब की पावर, उन सब का रेगुलेशन आरबीआई के हाथ में था। यानी आरबीआई बिफोर 1991 एक कंट्रोलर का रोल कर रही थी, फैसिलिटेटर का नहीं कर रही थी। यानी आरबीआई की परमिशन के बिना कोई कमर्शियल बैंक एक अपने स्मॉल डिसीजन भी नहीं ले सकती थी, इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड नहीं कर सकती थी। But due to liberalization policy, another reform was introduced in financial sector, and it was first related to change in the role of RBI. RBI जो पहले कंट्रोलर का रोल करती थी उसको रिड्यूस करके इन्होंने किसका रोल कर दिया? फैसिलिटेटर का। यानी कि अब आरबीआई ने अपना सारा पावर होल्ड कर लिया और कमर्शियल बैंक को फ्री कर दिया कि वो अपने एरिया में खुद काम करें, अपनी ब्रांचेस से रिलेटेड डिसीजन खुद लें। बस ओपनिंग ऑफ ब्रांच का डिसीजन आरबीआई के थ्रू होगा। रिलेटेड डिसीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट और एनी काइंड ऑफ लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटी दे विल डिसाइड, बट क्रेडिट कंट्रोल विल अगेन कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करेगी, दैट टू अगेन विद द यूज ऑफ देयर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक सेगमेंट ऑफ सेकेंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग, राइट। तो आरबीआई का रोल कैसा हो गया? कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर। तो जो 1991 से पहले आरबीआई कमर्शियल बैंक के लोन और डिपॉजिट्स दोनों की रेट डिसाइड करती थी, इंटरेस्ट रेट, वो आरबीआई ने फ्री कर दिया कमर्शियल बैंक को कि वो अपने लेवल पे लें, और प्राइवेट बैंक को भी फ्री प्ले करने के लिए परमिशन दे दी कि वो हमारी इकोनॉमी में आए, फॉरेन बैंक्स भी हमारी इकोनॉमी में आए, और प्राइवेट बैंक जो डोमेस्टिक लेवल से हैं वो भी हमारी इकोनॉमी में काम करें इन देयर ओन वे। बट जो लाइसेंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हें वो फॉलो करने हैं। बाकी अपने एरिया में डिसीजन लेने की परमिशन आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को दे दी। सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। सबसे बड़ा जो चेंज आया वो यही था लिबरलाइजेशन का, कि हमने अपनी कंट्री में डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक्स को भी एंट्री दी, प्लस फॉरेन बैंक्स को भी एंट्री दी, जिसमें सबसे बड़ी जो डोमेस्टिक बैंक इंट्रोड्यूस हुई दैट वाज आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। ये 2 बैंक हमारी कंट्री में सबसे पहले आई, जिसमें आईसीआईसीआई है और एचडीएफसी बैंक है जो हमारी कंट्री से थी, और इसके साथ फॉरेन बैंक आई विच इज एचएसबीसी एंड वी ऑल्सो नोट ABN। ये 2 बैंक और इंट्रोड्यूस हुई हमारी कंट्री में जो फॉरेन बैंक थी, जिन्होंने फॉरेन कैपिटल लेकर आया और हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, हमारे फाइनेंशियल मार्केट में
जंप किया और कंट्री को प्रॉफिट प्रोवाइड किया। नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ही सारा रोल खत्म नहीं हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स हमारी कंट्री में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, यानी कि दो नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए, FII एंड FDI। FII जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो मर्चेंट बैंकिंग, पेंशन फंड्स और इस तरह की इन्वेस्टमेंट में डील करते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट मनी मार्केट में डील करते हैं। ये ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें डेट और इक्विटी दो तरह के फ्रेम होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और मर्चेंट बैंकिंग में पैसा लगाते हैं, यानी मनी में ही मनी को इंक्रीज करते हैं। इनकी जो टारगेट है वो मनी मार्केट से ही है। और जब ये हमारी कंट्री में आए थे FII, वो 13 करोड़ रुपए लेकर के आए थे और आज इनका इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बिलियंस में है। अभी तो पेंडेमिक है इसलिए थोड़ा कम हो गया है, अदरवाइज ये हमारी कंट्री में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके लिए भी हमारी कंट्री फेवरेबल डेस्टिनेशन है विद द पॉइंट ऑफ हैविंग वाइड मार्केट प्ले। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी डिमांड है, लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादातर हमारी कंट्री में ये आना पसंद करते हैं। सो विद दिस लिबरलाइजेशन प्रोसेस वी हैड अ न्यू कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन विच वी हैव FII। फिर है FDI। FDI डायरेक्ट मार्केट से डील करती है, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये अटैक करती है सीधे कंज्यूमर मार्केट पे, यानी प्रोडक्ट मार्केट पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो यहाँ पे ये डील करते हैं कंज्यूमर पे डायरेक्ट, और FII डील करते हैं इनकम, मनी और फाइनेंस पे डायरेक्ट। सो इस तरह से हमारी कंट्री में ये दो नए सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक और चीज है स्टॉक मार्केट। जो सेबी का रोल था वो इंक्रीज हुआ, स्टॉक मार्केट का रोल भी यहाँ इंक्रीज हुआ। फिर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992। इससे पहले जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था सिर्फ वही काम करता था, लेकिन 1991 के रिफॉर्म पीरियड के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से बड़ा स्टॉक मार्केट क्रिएट हुआ, कंपटीशन स्टार्ट हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर में बूम आया और हमारी कंट्री को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। इसलिए हम कहते हैं ना कि इस LPG पॉलिसी के बाद ही हमारी कंट्री अंडर डेवलप से डेवलपिंग कंट्री बन गई। एंड द नेक्स्ट इज जन धन योजना, जो अभी 2015 में लॉन्च हुई। इट वॉज फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग वन अकाउंट एट ईच फैमिली, यानी हर एक का एक खाता होना जरूरी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। वन बैंक वन अकाउंट, यानी वन पर्सन वन अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर घर में एक बैंक खाता होना जरूरी हो गया था, जिसकी वजह से इसमें भी गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ। अगर कोई पुअर क्लास जो बिल्कुल भी खाते नहीं खुलवाती थी, उन्होंने खाता खुलवाना शुरू किया, अकाउंट खुलवाना शुरू किया, तो थोड़ा ही सही, थोड़ा भी पैसा वो अगर जमा कर रहे हैं तो उससे क्यूमुलेटिव बनता है, पैसे से पैसा बनता है, यही तो बैंकिंग होती है। सो इस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे। सो यू जस्ट राइट डाउन दी होल रिक्वायरमेंट, देन वील मूव टू दी नेक्स्ट। So now we are moving to the last reform sector, last reform area of liberalization period, that was external sector reform. If we are talking about external sector reform, it means we are somewhere dealing with foreign market and foreign trade. तो अब सबसे पहला रिफॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है पहले हमें ये समझना है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आएगा। फॉरेन एक्सचेंज is actually exchange of two currency in the international market. Like जब में इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसी भी तरह का ट्रेड हो रहा है, तो दो करेंसी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक डॉलर और एक रुपी। तो फॉरेन एक्सचेंज एक्चुअली क्या होता है, लाइक फॉर $1 वी आर पेइंग 75 रुपीज, राइट। तो इस सिस्टम में गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या प्रोसेस किया था, इट वॉज नोन एज डीवैल्यूएशन। कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या होता है, व्हेन वी पर्पसली फॉल इन दी वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी इंडियन करेंसी की वैल्यू को पर्पसली फॉल किया गया। क्यों फॉल किया गया, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और हमें फायदा हो। क्योंकि डीवैल्यूएशन होने से डेफिनेटली होता क्या है, जैसे अभी मैंने समझाया, लाइक $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज है। सपोज अब क्या हो जाए कि $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज, यानी कि अब हमें डॉलर पड़ेगा महंगा। बट किसको सस्ता पड़ गया, डॉलर को रुपीज सस्ती पड़ गई। तो जब डॉलर के अगेंस्ट रुपीज उनको ज्यादा मिलने लग जाती है तो फॉरेन ट्रेड हमारे बढ़ जाते हैं, यानी एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। इसलिए कारण गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन किया।
डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दो टर्म्स आते हैं साथ साथ, समझना इसको इस तरह से है। Devaluation is the process in which government purposely fall in the value of our currency। यानी हम जब जानबूझ करके अपनी करेंसी की वैल्यू को फॉल करते हैं, यानी सस्ता कर देते हैं। सस्ता करने का मतलब जो करेंसी के बदले $1 हमें 75 रुपीज के बदले पड़ रहा था, अब वही डॉलर हमें 80 रुपीज के बदले पड़ रहा है, यानी हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है अगेंस्ट डॉलर। तो जानबूझ के जब हम पर्पसली इसको फॉल करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। बट जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल मार्केट इन्वॉल्व होती है और मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, इन दोनों पे डिपेंड होती है डेप्रिसिएशन। यानी अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है तो डेप्रिशिएट हो जाती है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो डेप्रिशिएट हो जाती है। यानी मार्केट अपने आप ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व कर देती है, इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। बट जब आरबीआई इसमें इन्वॉल्व होती है, इंटरनेशनल अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं टू चेक द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और टू मैनेज समवेयर इफ फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट गुड फॉर सम कंट्री, और कहीं ना कहीं किसी को लॉस हो रहा है या किसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट हो रहा है, तब हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हेड इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल द कंट्री, तब इस सिस्टम को हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। इसकी डिटेल हम मैक्रो में भी पढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ आरबीआई ऑल्सो कंट्रोल्ड द सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हियर द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रोसेस ऑफ डिवैल्यूएशन in which government purposely fall the value of currency that I told you 75 से 80 हो जाती है, यानी वैल्यू कम हो जाती है और हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है। ये क्यों किया गया? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। इसके अगेंस्ट जो टर्म आता है रिवैल्यूएशन, उसका मतलब हो गया $1 बिकम 70 रुपीज, यानी अब हमारे लिए डॉलर सस्ता हो गया। तो रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन पर्पसली होते हैं और डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से होते हैं। सो दैट दिस वाज द मेन रिफॉर्म अंडर the sector foreign exchange reform. Now we are moving to foreign trade reform. Foreign trade reform was related to import licensing, यानी foreign trade. Foreign trade का मतलब क्या हो गया? Import and export, right? तो एक्सपोर्ट का तो हमने यहाँ देख ही लिया, एनकरेज करने के लिए डिवैल्यूएशन किया। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज को भी लिबरल किया, जिससे हमारी कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, अगर उन्हें बाहर से कुछ भी मंगाना है एज अ रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड, तो उनको इंपोर्ट फ्री करा गया और लिबरलाइज की गई रेट को बहुत ड्रास्टिकली नीचे लाया गया, जिससे कि इंपोर्ट को भी बढ़ावा मिले और हमारी कंट्री को इंडस्ट्रियल सेटअप को और डोमेस्टिक लेवल को और बूम मिले, यानी प्रोडक्शन हाई लेवल पर बढ़ता जाए। तो इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया, साथ साथ कस्टम ड्यूटी भी कम करी गई, क्योंकि कस्टम ड्यूटी हाई होने की वजह से कभी कभी प्रोसेस में भी डिले होता था और लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारे प्रोसेस गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कम किए, ड्रास्टिकली फॉल करी। लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस की पॉलिसी भी कम कर दी, सिर्फ कुछ गुड्स पे छोड़ा इंपोर्ट लाइसेंस जो हैजर्डस है, जो केमिकल बेस्ड है, जो इको फ्रेंडली नहीं है, राइट। तो जो गुड्स बाहर से आ रही हैं नॉन इको फ्रेंडली, जो हैजर्डस हैं, केमिकल बेस्ड हैं, उन पे इंपोर्ट लाइसेंसिंग रखा गया। बाकी सारी गुड्स को इंपोर्ट लाइसेंस से फ्री कर दिया, यानी इंपोर्ट को एक बड़ा बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट और बढ़ा, रॉ मटेरियल का यूजेस और बढ़े, मशीनरी के यूजेस बढ़े एंड ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ गई। तो इसमें टैक्स रिफॉर्म के फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म में एक और रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया इंपोर्ट लाइसेंसिंग के साथ साथ, दैट वाज रिलेटेड टू टैरिफ एंड कोटास। कोटास एंड टैरिफ हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, दैट वाज इन आवर सेकंड चैप्टर, टैरिफ एंड कोटास, इट इज विजिबल क्लियरली। तो टैरिफ मीन्स टैक्सेस, जो हाई टैक्सेस होते हैं, जो मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी मनी के थ्रू हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, उसको लिबरल किया, क्योंकि पहले टैरिफ रेट हाई कर रखी थी हमने ड्यू टू दी स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड, राइट। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ड्यूटीज हाई करने से हमने टैरिफ रेट बढ़ा दी थी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के हमने वापस से टैरिफ रेट को कंट्रोल किया, यानी मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन को लिबरल किया। अलोंग साइड जो कोटा रिस्ट्रिक्शन थे, यानी क्वांटिटी विच आर टू बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इन अ लेस अमाउंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेड पॉलिसी इन इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड।
क्योंकि हमने जब इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड में पढ़ा था तो हमने ट्रेड रिफॉर्म किए थे और उसमें हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को यूज किया था, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने टैरिफ बैरियर्स बढ़ाए थे, टैरिफ रेट हाई करी और कोटा फिक्स लिमिटेड कर दी, यानी कम कर दिया, जिसकी वजह से इंपोर्ट डिस्करेज कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट क्या था कि हमें इंपोर्ट को एनकरेज भी करना था साथ में, एक्सपोर्ट के साथ साथ। फॉर दिस रीजन टैरिफ बैरियर्स कम कर दिए, टैक्स रेट कम कर दी और कोटास बढ़ा दी, यानी क्वांटिटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया, जिससे आप ज्यादा क्वांटिटी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड पॉलिसी according to liberalization process. So this is how the liberalization policy affected our industrial sector, financial sector, fiscal sector as well as external sector. So this is all about the process of liberalization through which we achieve the target of knowing as developing country. और आज हम देख सकते हैं कि इंडिया टॉप 6 इन कंट्रीज में कंसिडर की जाती है, just because we are adopting the new era of strategies, policies and new framework. और अभी भी देखिए जिस पैंडेमिक ने हमें एक नया एक्सपीरियंस दिया है और हम कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और बेटर होने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ liberalization under these 4 categories. So now we'll meet in the next video with privatization. Till then, bye bye.